વાક શક્તિ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। કોંગ્રેસી ભારત જોડો ન્યાય યાત્રાને લઈને રાહુલ ગાંધી ગોધરા શહેરના ગાંધી ચોક ખાતે પહોંચ્યા હતા। ગોધરા ખાતે ઉપસ્થિત કોંગી કાર્યકરોએ રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કર્યું। ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે રાહુલ ગાંધીની યાત્રા યોજાઈ હતી। ગોધરાથી મનોજ મારવાડીનો રિપોર્ટ। રાહુલ ગાંધીએ સંબોધન કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં જો કોઈ ગરીબ વ્યક્તિ છે તેમની સાથે આ દેશમાં અન્યાય થઈ રહ્યો છે તો એક તરફ અદાણી જેવા લોકો છે તો બીજી તરફ ભારતના 90% લોકો છે જે દેશની જે પૂંજી છે તે 4-5 લોકોના હાથમાં છે। બસો ભારતના અરબપતિઓની કંપની છે જે ભારતના ધનને કાબૂમાં કરે છે। આ 200 લોકોમાં સામાન્ય કે ગરીબ લોકો કેટલા છે? એક પણ નહીં। અદાણીની સિનિયર મેનેજમેન્ટમાં એક પણ આદિવાસી કે દલિત કે ગરીબ નથી। 70% લોકો દેશને બનાવવાનું કામ કરે છે પણ જ્યારે ધન આપવાનું કે કામ આપવાનું આવે તો તેમનો સમાવેશ થતો નથી। જ્યારે બીજી બાબતમાં જણાવ્યું કે નાના વેપારીને ખતમ કરવામાં આવી રહ્યા છે। હજારો લોકો સાથે ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન મારે વાતચીત થઈ છે। બધાએ એમ કહ્યું છે કે ભારત ભાઈચારાનો દેશ છે, નફરતનો દેશ નથી। દરેક રાજ્યએ મને રસ્તા બતાવ્યા। યુવાનોને આજે રોજગાર નથી મળતો, 3-4 મોટા ઉદ્યોગપતિઓ જ ફાયદો મળે છે। નાના વેપારીઓને ખતમ કરવામાં આવી રહ્યા છે। નાના વેપારી કહે છે કે જીએસટી અને નોટબંધી અમને મારવાનું અને અદાણી માટે રસ્તો બનાવવાનું હથિયાર છે। દરેક સેક્ટરમાં અદાણી જોવા મળે છે। દરેક કોન્ટ્રાક્ટર 2-3 લોકોને આપી દીધા છે। સાથોસાથ ત્રીજા મુદ્દામાં જણાવ્યું કે બેરોજગારીમાંથી નીકળવાના રસ્તા બંધ કર્યા। અગ્નિવીર યોજના કેમ લાગુ કરી તે સેના અને આર્મીને પણ સારી નથી લાગતી કેમ કે ઈચ્છે છે કે એમના જવાનોને 4 થી 5 વર્ષની ટ્રેનિંગ મળે, પેન્શન મળે। જે પૈસા ટ્રેનિંગ પેન્શન પાછળ જતા હતા તે હવે અદાણી પાસે જાય છે। જો શહીદ થશો તો શહીદોને દરજ્જો નહીં મળે, પેન્શન નહીં મળે ને બેરોજગારી વધશે। આમ આર્મીનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો। બેરોજગારીમાંથી નીકળવાના રસ્તા બંધ કરી દીધા। 2 પ્રકારના શહીદ છે, એક જે સેનામાં શહીદ થયા અને બીજા જે 4 વર્ષ બાદ અગ્નિવીર યોજના છોડ્યા બાદ ફરી બેરોજગાર, તો એ પણ શહીદ। ભારત જોડો યાત્રામાં રાહુલ ગાંધીએ ગોધરાથી ખુલ્લી જીપમાં ભાષણ આપ્યું। અમારી સરકાર આવશે તો 30 લાખ નોકરી આપીશું। આજે 30 લાખ સરકારી નોકરી છે। જેવી અમારી સરકાર આવશે તો 30 લાખ નોકરી આપીશું। જે યુવાને કોલેજ પૂર્ણ કરી હશે તેમને અમે ખાનગી અને સરકારી જગ્યા પર 1 વર્ષ માટે નોકરીની ગેરંટી આપીએ છીએ। 1 વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયા તમારા ખીચામાં। પેપર લીક અમે બંધ કરીશું। જો આવું કરશે તો અમે સખત પગલાં લઈશું। એપ્રેન્ટિસ કાયદો લાગુ કરીશું જેમાં ડિગ્રી હોલ્ડર યુવાનને એપ્રેન્ટિસનો અધિકાર આપીશું। 1 વર્ષ સુધીમાં 1 લાખ રૂપિયા આપીશું અને સરકારી કે ખાનગી કંપનીમાં ટ્રેનિંગ આપીશું। પેપર લીક થાય છે એટલે એ માટે પેપરની આઉટસોર્સિંગ બંધ કરી જો કોઈ પણ લીક કરશે તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી કરીશું। 90% લોકો ખેતી કરે છે જેમની ભાગીદારી નથી મળતી, આ બદલાવ લાવીશું। ગરીબ વ્યક્તિ માટે પણ બેંકના દરવાજા ખુલશે। હિન્દુસ્તાનના વેપારીના 16 લાખ કરોડ રૂપિયા માફ કર્યા છે એટલે કે 65,000 કરોડ રૂપિયા એટલે કે 24 વર્ષના મનરેગા યોજનાના રૂપિયા માફ કર્યા છે પણ ખેડૂતોના દેવા માફ કર્યા નથી। મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાની વાત કરી હતી। અમે 5,000 કરોડ રૂપિયાનું ભારતના યુવાનો માટે ફંડ બનાવીશું જે જિલ્લાના સ્તરે હશે, બ્લોક હશે। સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવા માટે દરેક જિલ્લામાં 10 થી 20 કરોડ રૂપિયા આપીશું। અમે ગરીબ લોકોની મદદ કરીએ છીએ। અમે જોડવાનું કામ કરીએ છીએ અને ભાજપ નફરત ફેલાવવાનું नहीं है। और वो जो है वो सारे विदेशी कंपनी, विदेशी पैसे के कंट्रोल में है। तो हमने निर्णय लिया है कि 5,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के लिए फंड बनाएंगे और वो फंड दिल्ली में नहीं होगा, वो फंड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जाएगा। मतलब स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के लिए किसान के बेटे, मजदूर के बेटे पैसा सेना में जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाता था, उनकी पेंशन के लिए जाता था, उनकी कैंटीन के लिए जाता था। वो पैसा आप सरकार अदानी जी को हथियार बेचने में देना चाहती है। अब हुआ क्या, 2 तरीके के शहीद हो गए। एक जो नॉर्मल आर्मी का जवान है और दूसरा जो अग्निवीर है। अग्निवीर का कैसे कहते हैं, भैया आप 4 साल रहोगे, अगर आप शहीद हो गए, आपको गोली लग गई तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप आर्मी छोड़ोगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। बड़ी ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, आपको जो 90% आबादी है हिंदुस्तान की, वो लोग आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये हम बदलना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति
चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो जो हाथ से काम करता है, उनके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले। आज क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख मतलब आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? आम आदमी समझ ही नहीं सकता ये 16 लाख करोड़ कितना होता है। मैं आपको बताता हूं, 65,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए में एक साल का मनरेगा चल जाता है। ठीक है, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को 24 साल का मनरेगा कर्जा माफ करके दे दिया। ये किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। हिंदुस्तान में एक आपको ऐसा युवा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा मुझे अग्निवीर योजना अच्छी लगती है। ये सेना को भी अच्छी नहीं लगती, आर्मी के लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जवानों को 4-5 साल की ट्रेनिंग लगे। वो चाहते हैं कि उनके जवानों को लगे कि हमारी भी रक्षा है, हमारी पेंशन मिलेगी, हमारी कैंटीन होगी। तो ये सिर्फ इसका एक ही कारण है, जो पैसा सेना में जवानों की ट्रेनिंग के लिए जाता था, उनकी पेंशन के लिए जाता था, उनकी कैंटीन के लिए जाता था, वो पैसा सरकार अदानी जी को हथियार बेचने में देना चाहती है। अब हुआ क्या, 2 तरीके के शहीद हो गए, एक जो नॉर्मल आर्मी का जवान और दूसरा जो अग्निवीर। अग्निवीर कैसे कहते हैं, भैया आप 4 साल रहोगे, अगर आप शहीद हो गए, आपको गोली लग गई तो आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आप आर्मी छोड़ोगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको वापस 4 साल बाद बेरोजगारी में हम डाल देंगे। तो आने वाला रास्ता बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, BHEL, AHEL, ये सब कंपनी होती थी, इसमें युवा रोजगार पा सकते थे। इनको एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद बेच रहे हैं। तो आपके जो रास्ते थे बेरोजगारी से निकलने के, उनको ये बंद कर दे। जहां भी कर्जा माफ नहीं। तो इन लोगों ने क्या गलती की है कि अदानी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, बड़े बड़े अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए हो जाता है, मगर जो देश को बनाते हैं, चलाते हैं, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, स्टूडेंट्स, इनका 1 रुपया कर्जा नहीं माफ। नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की थी, स्टार्टअप इंडिया की बात की थी। कितने स्टार्टअप दिखे आपको? नहीं है, एक स्टार्टअप नहीं है, और वो जो है वो सारी विदेशी कंपनी, विदेशी पैसे के कंट्रोल में है। तो हमने निर्णय लिया है कि 5,000 करोड़ रुपया हम हिंदुस्तान के गरीब युवाओं के लिए फंड बनाएंगे, और वो फंड दिल्ली में नहीं होगा, वो फंड डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे जाएगा। मतलब स्टार्टअप कंपनी शुरू करने के लिए किसान के बेटे, मजदूर के बेटे हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 करोड़ रुपए उनके लिए हम भेज देंगे, ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में। तो ये फर्क है हमने और उनमें। हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, वो 2-3 बड़े बड़े उद्योगपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा देते हैं। आप सब आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो गुजरात की स्पेशलिटी है,
उनको पूरे हिंदुस्तान में एक के बाद एक खत्म किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों ने, छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा कि नोटबंदी और जीएसटी हमें मारने के हथियार, हमें खत्म करने के हथियार हैं और अदानी जी के लिए रास्ता बनाने वाले हथियार हैं। तो जो देश को रोजगार देते थे, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, उन सबको सरकार ने खत्म कर दिया है। और हर सेक्टर में अगर आप देखें तो आपको अदानी दिखाई देगा। आप एयरपोर्ट देख लीजिए, आप पोर्ट्स देख लीजिए, आप कृषि का सेक्टर देख लीजिए, स्टोरेज देख लीजिए, हिमाचल में सेब देख लीजिए, सोलर पावर देख लीजिए, विंड पावर देख लीजिए, पावर जनरेशन देख लीजिए, माइनिंग देख लीजिए। सब जगह आपको एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। पहले क्या होता था? पहले हथियार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी, राइफल्स, पिस्तौल कराते हैं। गरीब युवा एग्जाम करते हैं। जिस दिन आप एग्जाम भरने जाते हो उस दिन 2-3% अमीर बच्चे अपने मोबाइल फोन पे ईमानदार बच्चों को एग्जाम दिखा देते हैं कि ये देखो तुमने पढ़ाई की, हमारे पास तो पेपर लीक हो गया। तो हम एक नया कानून लाएंगे जो ये जो पेपर की आउटसोर्सिंग हो रही है, बेटा टेस्टिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, चेकिंग की आउटसोर्सिंग हो रही है, इसको हम बंद कर देंगे। सिर्फ सरकारी संस्थाएं एग्जाम दे पाएंगे और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो उस पर जबरदस्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई एकदम हम शुरू कर देंगे। तो ये हुई बात बेरोजगारी की। मेन सवाल ये है कि 90% लोग खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और हिंदुस्तान में उन 90% को कहीं भागीदारी नहीं मिली। आप बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी देख लो, बड़ी ब्यूरोक्रेट्स को देख लो, आपको जो 90% आबादी है हिंदुस्तान की, वो लोग आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये हम बदलना चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, जो हाथ से काम करता है, उनके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले। आज क्या होता है? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 16 लाख मतलब आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? आम आदमी समझ ही नहीं सकता ये 16 लाख करोड़ कितना होता है। मैं आपको बताता हूं, 65,000 करोड़ रुपए, 65,000 करोड़ रुपए में एक साल का मनरेगा चल जाता है। ठीक है? मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों को 24 साल का मनरेगा कर्जा माफ करके दे दिया और एक किसान का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ नहीं किया।